I guess recording शुरू हो गई है. So yeah, hello everyone. I am Praful Chauhan. So obviously I don't think many of you watching this video आप लोग मुझे जानते होंगे because मैं इतना ना content डालता हूँ ना मैं इतना popular हूँ. But yeah, my name is Praful Chauhan and I'm an entrepreneur with now more than 5 years of experience and still grinding, still hustling, still on my struggle and still working on my startups and projects. सो बिफोर आई स्टार्ट दिस रिएक्शन वीडियो थंबनेल टाइटल देख के आपको पता ही लग गया होगा कि मैं क्या करने वाला. तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ कि मुझे क्यों ये रिएक्शन वीडियो बनाने का मन किया. सो व्हेन आई इनफैक्ट आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम गुड़गांव टू चंडीगढ़ टुडे. घर में वापस आ रहा था और आई वाज जस्ट चेकिंग माय इंस्टाग्राम फीड एंड आई सॉ थोड़े थोड़े क्लिप्स देखे जो मोस्ट वाली ये मास्टर यूनियन की मार्केटिंग टीम ही डाल रही है. लाइक pretty obvious. So yeah, मैंने देखा उसमें that Ashneer Grover is there and like there are kids, school kids +1 +2 के बच्चे जो अपने startup ideas पेश कर रहे हैं and तो मुझे काफ़ी ना relatable लगा because even I started my journey school से. I was मतलब मैं +1 बस over ही हो रही थी मेरी and I started my first startup and काफ़ी like उसके बाद कहानी है but इन अ नटशेल मुझे बड़ा ही रिलेटेबल लगा एंड आई वाज लाइक रियली क्यूरियस टू नो कि आने वाली जनरेशन लाइक उनके अंदर लाइक एंटरप्रेन्योरशिप किस लेवल की है, वो किस लेवल तक का ग्राइंड कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं. सो या लाइक सो दैट्स वाई. तो ट्रेन में मैं आ रहा था तो मैंने सोचा यार इस पर रिएक्शन वीडियो बनानी चाहिए. तो लेट्स होप काफ़ी मज़ा आएगा देखने में. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट. Welcome to the CEO Challenge by Masters Union. I am Vaishali Shukla, your host and a PGP student here at Masters Union. We received 6,000 entries from more than 500 schools and then we had our first round. The 7-minute... Okay, so basically अच्छा the Masters Union ने schools को approach किया और वहाँ से इनके पास applications आई. Nice, like seeing this startup culture अब स्कूल तक भी आ रहा है और जो बहुत ज़रूरी था आई गेस बिकॉज स्कूल्स में यूजुअली एंटरप्रेन्योरशिप तो सोचता भी नहीं कोई, बहुत कम सोचते हैं. बट लाइक अगर स्कूल्स आर प्रमोटिंग इट एंड देर आर ऑर्गेनाइजेशंस जिसको प्रमोट कर रही हैं सो दैट बच्चों के में स्टार्टिंग से थोड़ा एक वो कीड़ा रहे कि यार हम खुद का भी शुरू कर सकते हैं. बट एनीवे let's see. 7-day marathon, and that gave us the second rounders who then created products for Open Secret. Their brief was very simple. They had to come up with some of the craziest ideas possible. And now we finally have our craziest ideas possible. Okay. देखते हैं. top contenders who are pitching their business ideas to the biggest, boldest. Hi, I'm Japjot Singh and founder of Estate Works. और Mr. Singh, क्या हाल चाल? बढ़िया तुसी दसो. I'm in 11th grade from Ludhiana, Punjab and I'm in commerce right now. I picked commerce because I was too educated for arts and I was less educated for non-med. I'm here pitching to I'm sorry. I'm so sorry. Ashneer Grover sir. So, Was this intentional या फिर anyway scared तो होंगे, excited, nervous थोड़ा ज़्यादा नहीं. Mixture of everything. 10 लाख रुपए. What will you do? That I would have to ask my father because I don't have a bank account that can hold 10 lakh rupees right now. what अश्नीर, हमने रिसेंटली सुना आपने एक नया घर खरीदा है एंड अपेरेंटली साउथ दिल्ली में आपने उसके लिए इतने ही घर देख लिए कि आप एक रियल एस्टेट एजेंट ही बन जाएं. बट जस्ट थिंक कि आपने उस पर इतना टाइम लगा दिया
कि आप एक नया स्टार्टअप ही खोल लेते. Did India miss another unicorn from you, sir? कम ऑन ब्रो, थोड़ी स्माइल तो दे दो यार इस बच्चे को. मतलब एटलीस्ट उसको थोड़ा कंफर्ट तो फील हो. मतलब एनीवे. But not only you. Everybody faces this time loss while buying a new home. So आपका टाइम बचाने के लिए मैं लेके आया हूँ एस्टेट वर्स. Hi Ashneer, मेरा नाम है जपजोत सिंह and I am from Ludhiana, Punjab. Estateverse is a software that will use virtual reality to let you experience your new home virtually without being physically present there. Estateverse आपकी सारी listings को हमारे VR में capture करके रखेगा and when you will need to see it, you can see it through our VR headsets. हमारी target audience will be all the real estate agents as well as the big builders. हम उनके ऑफिस में अपने VR सॉफ्टवेयर्स एंड VR हेडसेट्स पुट अप करेंगे एंड विल चार्ज अ मंथली सब्सक्रिप्शन फॉर दैट. हमारा सॉफ्टवेयर बिल्डर, बायर एज वेल एज द एजेंट हम सबके टाइम सेव कर रहा है. तो नाउ अशनीर, लेट्स जॉइन हैंड्स एंड ट्रांसफॉर्म दिस रियल एस्टेट इंडस्ट्री इनटू द मेटावर्स एंड नेम इट एस्टेटवर्स. ओके, नाइस शॉर्ट क्रिस्प पिच. अच्छा एक सेकेंड, बिफोर यूट्यूब पे देखने वाली ऑडियंस हो जाए यार क्या एकदम कौन ऐसी जज कर रहा है इन बच्चों को. सो या जैसे मैंने बताया काफ़ी रिलेटेबल चीज़ है ये. और इवन आई डिड अ लॉट ऑफ पिचिंग टू रेज मनी टू गेट इनक्यूबेटेड एंड मेरे बहुत बार पिच करना पड़ता था अपना पहला स्टार्टअप. सो आई मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इनिशियली और धीरे धीरे आप सीखते हो. यू कीप ऑन एडिंग न्यू थिंग्स. आपको पता है कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, विच आर द मेन USPs यू शुड मैंशन, और ये सब चीज़ें वो सब चीज़ें. तो मतलब दीज आर जस्ट इनपुट्स फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पिच. तो अगर दिस किड इज़ वॉचिंग दिस वीडियो ब्रो एंड एनी ऑफ द किड जिसकी भी मैं पिच जज करूँगा, तो यार उसको वैसे वो मत लेना, से ऑफेंड मत होना मेरे से. मैं सिर्फ वैसे अपना एक इनपुट दे रहा हूँ कि इनपुट, और मैं ओवरऑल बता रहा हूँ लाइक व्हाट्स माई पर्सपेक्टिव, राइट. जब जो दिख बेसिकली जब आप घर खरीदते हो ना तो आपको उसको उसमें रहना भी होता है. ठीक है, वो सिर्फ उसकी फोटो डालनी होती है इंस्टाग्राम पे. तो कुछ चीज़ें जो हैं वो कभी वर्चुअल ट्रांसलेट नहीं होंगी. जब आप एक घर खरीद रहे हो आपको ये देखना है कि उसके आसपास की सड़क कैसी है, सामने पार्क है या नहीं है, उसकी एक्सेस कैसी है, ठीक है, आस पड़ोस कैसा है, राइट. बहुत सारी चीज़ें लगती हैं. सिर्फ घर का इंटीरियर नहीं होता जो देखना होता है. एंड दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास अपनी रियल एस्टेट से महंगी कोई चीज़ होगी इंडिविजुअली, ठीक है. तो जब इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है तो आपको हर चीज़ को फैक्टर इन करना पड़ता है. एंड उसके लिए आपको फिजिकल प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे. सर आप जो ये टेक्नोलॉजी दिखा रही हो तो वैसे भी है, कोई नई चीज़ नहीं है. आप इतनी होटल की वेबसाइट पे चले जाओगे आपको इंटीरियर ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है. बट आप जब घर खरीदते हो वो सिर्फ इंटीरियर नहीं खरीद रहे होते, उसमें एक पूरा होल पैकेज होता है. मार्केट में और भी तो लोग हैं, मैजिक ब्रिक्स है, 99 एकर्स है, वो क्या काम कर रहे हैं? वो भी तो यही काम कर रहे हैं. आपने ऐसा क्या सोचा जो वो लोग नहीं सोच पाए या जो उसके बियॉन्ड है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी अभी आपको 3 फीचर्स एक्स्ट्रा दे रही है कि हम आपको लोकेलिटी का पोल्यूशन सेंटर, उस घर की वास्तु दिशा एज वेल एज द लोकेलिटी की पोजिशनल फीचर्स बताएंगे. सब बताते हैं आजकल. सेकेंडली वास्तु तो मतलब वो हो गया है, कुंडली टाइप हो गया, सब बताते हैं. सर इंडिया में वास्तु बहुत लोग मानते हैं, लाइक सीरियसली वास्तु इज अ रियली बिग थिंग इन रियल एस्टेट फॉर इंडिया. एंड सेकेंडली वर्चुअल रियलिटी सर कोई भी नहीं यूज नहीं कर रहा, वर्चुअल हेडसेट में कोई भी नहीं दिखा रहा. एंड व्हाट यू सेड हेडसेट मैं हेडसेट क्यों लूंगा? मतलब मकान देखने के लिए मैं हेडसेट ले लूंगा, उतनी देर में मैं जाके देख ही नहीं आऊंगा. वही तो कह रहा हूँ सर, कंज्यूमर डज नॉट हैव टू बाय. मैंने ये तो बोला we'll just put up our software in the real estate agents office. हमारा सॉफ्टवेयर ये कर रहा है. एंड मैजिक ब्रिक्स वन एकड़ जो कर रहा है, आपको कोई भी अगर आप गूगल पे स्ट्रीट व्यू देखते हो आपको दिखता है 360 व्यू दिखता है, बट यू आर व्यूइंग इट इन अ फोन. VR का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होता है एंड यू कैन रियली एक्सपीरियंस योर होम इन दैट. यार वो आधे रियल एस्टेट वाले लोग ना VR ही दिखा रहे होते हैं, असली में कुछ होता भी नहीं है वैसे लाइफ में. तो ठीक है, चलो थैंक यू. थैंक्स. Okay. So first of all, yeah, like really brave kid. सुन लिया इसने अशनीर को बोलते हुए.
और मतलब अगर मैं इसकी एज को होता वहाँ होता और मतलब ऐसे मतलब वो भाई मेरा तो रोना निकल जाता, सही सच बता रहा हूँ। बट एनी वे, तो यार इसको ऑल दो लाइक इसका पूरा प्रोजेक्ट अगर मैं देखूँ तो यार नॉट अ बैड वो लाइक इसको इसको क्या पेन पॉइंट बताना चाहिए था, इसको पेन पॉइंट इसको ना ऐसे पिच करना चाहिए था लाइक यू गो टू अ रियल एस्टेट एजेंट, उसके पास यार 10 20 30 40 प्रॉपर्टीज़ होंगी तुम्हें दिखाने के लिए, राइट। तो मैं एज अ कस्टमर मुझे टाइम बचाना है और मुझे पता है उस 40 प्रॉपर्टीज़ में से ना मेरे मतलब की शायद 5 हो। तो अगर मैं वो 40 में से 5 फ़िल्टर आउट कर सकता हूँ वीआर के थ्रू तो मेरा टाइम बचेगा, ठीक है। रियल एस्टेट एजेंट का भी टाइम बचेगा, उसका फ्यूल भी बचेगा, उसको इतना ना उनको घुमाना पड़ेगा हर एक जगह। वो वीआर में अब 40 प्रॉपर्टीज़ दिखा देगा, उसमें जो 5 पसंद आएंगी मुझे इंटीरियर वाइज, दैट आई कैन नाउ शॉर्ट लिस्ट एंड गो एंड सी। तो आई थिंक ही शुड हैव pitched this problem statement like this. So maybe, Ashneer would have been more convinced towards it. But yeah, moving on. Good job, good job. Good job, boy. You are a brave kid. Nice. Hello, I am Divyanshi Gupta and I am the founder of Skill Before Degree. I am a 12th grader, soon to turn 18, and I am studying in Delhi. I liked math and I also liked science. So math is my favorite subject. I am a Vedic math trainer. अगर 10 लाख रुपए मिल गए, what will you do? Party. First thing has to be party, then has to be shopping, and then third thing will be party again. Since Okay. Let's not judge. अच्छा यार मतलब ठीक है, मैं भी जब इसकी उम्र का था 17-18 साल का, थोड़ा बहुत पैसा आता था स्टाइपेंड का इधर उधर से हल्का फुल्का, तो मतलब उड़ा देते भाई, नहीं बचता था। क्योंकि स्टार्टिंग में तुम्हें होता है ना यार, कुछ भी थोड़ा बहुत है तुम्हें इतना कुछ लेना होता है यार, शॉपिंग हो गई, गैजेट्स हो गए, भाई मैं तो पीसी अपग्रेड करता रहता था बात बात पे। तो या आई गेस इस एज में आपका उतना माइंडसेट नहीं होता, आपको पता नहीं होता हाउ टू मैनेज योर फाइनेंशियल्स। बट लाइक अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में घुस रहे हो, अगर आप एक वो हसल कल्चर में घुस रहे हो और आपको कोई ये बोले कि अगर मैं आपको 10 लाख दूँ तो आप उसका क्या करोगे, तो यार आपका ना सीधा आंसर ही होना चाहिए। इनफैक्ट आपका आंसर नहीं होना चाहिए, आपका माइंडसेट ही होना चाहिए यार उस 10 लाख को ना 1 करोड़ बनाना मुझे 1 साल में। उसको या तो अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके या कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके, मतलब उस पैसे को काम पे लगाना है। वो कैपिटल है तुम्हारा, एसेट है, उसको ऐसी मतलब उड़ा दोगे पार्टी शॉपिंग में, फिर कुछ नहीं बचेगा। माइंड सेट होना चाहिए 10 लाख है, 10 लाख का 1 करोड़ करना अगले साल में, ठीक है। तो आई गेस दिस इज़ माई एडवाइस टू ऑल द 17 and 18-year-old entrepreneurs. But anyway, let's resume. since day one, I knew that if I make it to round 3, I'll have to do something with Ashni, but I did not know what it will be. So I thought, करना हो पिच ना करना हो, but अब जब पिच करना है तो I'm very much hopeful and I'll do good, I guess. क्या मुझे कोई बता सकता है कि 94 का स्क्वायर क्या होता है? I know it's not that easy, so let me help you. 94 100 से कितना कम है? So 94 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या आया? 88, right? And 6 का स्क्वायर क्या होता है? That's your answer. 88 36. Isn't this easy now? लेकिन ऐसा कोई भी क्वेश्चन देख के क्या हमारे मन में होती है ना थोड़ी सी हिचकिचाहट, और हमें पता ही नहीं लगता कभी थोड़ी हिचकिचाहट मैथ्स के फियर में बदल जाती है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टूडेंट्स, क्योंकि मैथ्स तो हमारी लाइफ का, सभी की लाइफ का एक पार्ट है। लेकिन अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, 93% of Americans and 82% of students in India experience some level of math anxiety. Hello Ashni sir, I am Divyanshi Gupta and I am the founder of Skill Before Degree. For the past 1 year at Skill Before Degree, we have been on the mission to make students math confident. And आज तक हम लोगों ने पार्टनर किया है with 45 organizations across the world, which includes UK and USA as well, जहाँ हमारे एक्सपर्ट्स पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को वैदिक मैथ एंड लॉजिकल रीजनिंग। Our platform is an online learning management system which trains the teacher and equips the teacher with all the necessary resources that she requires to teach the students further, जैसे structured course curriculum,
presentations to teach the students, assessments, graphic designs, and also facilities like automatic evaluation of the homework, which eradicates all the hassles of a teacher. All the resources combined become most beneficial to the students because students also end up overcoming their fear of math and gain much more substantial knowledge. And in fact, they start playing with the numbers. तो दिव्यांशी ये एक्चुअल बिजनेस है आपका, क्या चल रहा है? हाँ जी, this has been executing for the past 1 year. तो ये आप खुद कर रहे हो या पेरेंट्स के साथ कर रहे हो? They helped me to realize the problem, and then we've been executing it together. We do constant planning at home, and then we hire interns to help this execute. तो पर एग्जीक्यूट हो कैसे रहा है? मतलब आपने ऐप बनाया है, क्या है? हाँ, we do have a website जहाँ पे टीचर्स आते हैं, हमारा प्रोग्राम को सब्सक्राइब करते हैं. या सो एक क्लासिक मिस्टेक कर दी दिव्यांशी ने. सो लाइक whenever you are pitching ना, तो थोड़ा आइडिया देना चाहिए आपको इन्वेस्टर को या अपने पोटेंशियल उसको कि तुम्हारा लाइक प्रोडक्ट है क्या, लाइक इट्स वेब ऐप, वेबसाइट, फिजिकल प्रोडक्ट है, सर्विस है, क्या चीज़ है. तो पूरी पेज पे वो एक चीज़ वो मिसिंग थी, बट आई गेस शी विल इम्प्रूव. या लेट्स कंटिन्यू. और सारी रिसोर्सेज को अवेल करते हैं फॉर देमसेल्व्स एंड देयर स्टूडेंट्स. तो बेसिकली आप स्टूडेंट को टीचर के थ्रू रीच कर रहे हो बेसिकली. हाँ जी. तो स्टूडेंट को भी जो कोर्स सेल करना है वो टीचर ने करना है. हाँ जी, हम लोगों ने एक MRP अपनी वेबसाइट पे सेट कर रखी है. टीचर अप टू दैट कुछ भी चार्ज कर सकती है डिपेंडिंग ऑन द बैच साइज एंड द लोकेशन दैट शी इज टीचिंग इन. एंड हमें उसका एक फिक्स्ड अमाउंट है जो हम चार्ज करते हैं टू एक्सेस द पोर्टल फॉर वन स्टूडेंट. ओके. एंड आपकी प्राइसिंग क्या है? हमारी प्राइसिंग रहती है 1000 टू एक्सेस द पोर्टल फॉर द स्टूडेंट, एंड आवर रिन्यूअल रेट इज ऑल्सो 65%. जिन दो बच्चों ने हमारा फर्स्ट लेवल कंप्लीट किया है, दे हैव ऑलरेडी साइंड अप फॉर लेवल 2. ओके. एंड ये अभी और कोई नहीं कर रहा है? बायजूस, इतने सारे हैं ये. तो ये इंडिविजुअल टीचर्स को कोई भी मार्केट में भी कनेक्ट नहीं कर रहा है, स्पेशली फॉर वैदिक मैथ एज अ स्किल. वैदिक मैथ जो भी है एक स्कैटर्ड सब्जेक्ट है. पर बायजूस जो है वो टीचर्स के लिए कुछ करता है या सिर्फ स्टूडेंट के लिए करता है? वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए करता है, टीचर्स को एम्प्लॉय करता है और उनसे पढ़वाता है. ठीक है. नो, गुड बिजनेस यार. अगर आप इतना प्रॉफिट कर रहे हो तो इट्स अ वेरी गुड बिजनेस. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन. Hi, this is Yuvraj, the founder of Homegrown Co. I'm from Aditya Birla World Academy, from Bombay. Being in the 11th grade, of course, I have a lot of work, but I take out time for such competitions. So Homegrown Co is a one-of-a-kind idea that has never been launched. I am very excited. I'm a little bit nervous, but yeah, it's more excitement than nervousness. I think I have confidence in my product, my idea, so it'll be good. What are you doing with the time? I mean, I'll keep it. I'll like be happy about it. Yeah, it's once in a lifetime thing. Solid entry, bro. But where's that mindset? Where's that 10 to 100 mindset? Anyway, अभी जर्नी शुरू की होगी लॉन्डन ने, सीखेगा, he'll improve. And I guess like it's episode 1 and there will be multiple episodes in this series. So yeah, देखेंगे. मैं हर एक एपिसोड पे रिएक्शन बनाऊंगा एंड विल सी कि कौन सा बच्चा यंग एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट है जो 10 to 100 वाला सोचेगा, है ना. लेट्स सी. एंड आई गेस हाँ, इसी की पिच थी जो लाइक इंस्टाग्राम पे ये लोग मार्केटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं. क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है क्या, जब आप कहीं बाहर थे, कि आप बाहर का खाना खाते खाते बिल्कुल थक गए? मेरे साथ भी हुआ है. Hi Ashneer sir, my name is Yuvraj Nahar and I am the founder of Homegrown Co, an app that allows you to order home food from different houses in your city. Homegrown Co is a food tech aggregator company that connects buyers with sellers. I came up with this idea during the COVID-19 pandemic, where I saw many talented chefs making really great dishes. However, they had no one they could sell it to, no audience, nothing. So I decided to make Homegrown Co, where buyers get cost-effective meals at the click of a finger, and sellers are able to reach a much wider audience and hence get a source of income for their family. So why will a normal buyer, why will they come to my platform? India is a very price-sensitive market. Now in this model,
the sellers have no rental costs and they have no manpower costs because it's not a restaurant. So the cost of the meals will be much lesser and therefore the buyers will be able to afford it. Buyers will also come to my platform because we're providing them with home food, which is often a much healthier alternative. And now why will a seller come to my platform? So we are providing these home-based sellers with a platform where they can reach out to a much wider audience. And we also ensure that there'll be no delivery or logistical headaches for them because we're managing the delivery by tying up with our delivery partners. And in fact, we're looking to create over 1 million home chefs in the country in the next few years. Happiness is homemade. And are you willing to join us in order to make this one-of-a-kind venture successful? तू मुंबई से आया ना? हाँ. अच्छा एक सेकेंड. नाइस पिच ब्रो. लाइक काफ़ी अच्छे पॉइंट्स थे, काफ़ी अच्छे से प्रोडक्ट डिस्क्राइब किया अपना. इसने स्टेक होल्डर्स बताया कि यूज़र्स रहेंगे तो कौन रहेगा और क्यों आएगा, एंड एक विजन भी बता दिया एंड में कि 10 लाख शेफ्स चाहिए इसको, और फिर टाइमलाइन भी सेट किया कि व्हाट्स द टारगेट. अब नाइस. मतलब यार इस एज पे लाइक इफ यू लर्न टू पिच करेक्टली वेदर योर प्रोडक्ट और योर प्रोजेक्ट इज गुड और नॉट, इवन दैट इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट इन योर कमिंग ईयर्स. तो वहाँ पे तो डब्बे वाले पहले से ही हैं यार. नो, तो वो थोड़ा डिफरेंट है. उधर ना वो घर से, आपके घर से खाना ले जाएंगे, जो आपके मतलब जिसने भी घर पे बनाया है वो आपको देंगे उधर. कम ऑन अश्नीर ब्रो. लाइक डब्बे वाले यार, उसने उसका कुछ और है, तुम डब्बे वालों पे पहुंच जाओ सीधा. टिफिन वाला अलग है ब्रो, अलग है. आपका घर का खाना है. या मे बी ही इज डेलिबरेटली अश्नीर इन बच्चों को ऐसे टीज कर रहा है, ऐसे मतलब बड़े बेसिक और ऐसे क्वेश्चन पूछे जस्ट टू टेस्ट देम आउट. मे बी बट इफ नॉट Here we are taking देन कम ऑन. नहीं, पर सिर्फ डब्बे वाले वो नहीं करते हैं. डब्बे वाले बाकी होम कुक्स के यहाँ से भी आपको खाना डिलीवर. नहीं, मेनली अरे मैंने खाया यार, मैं बॉम्बे में काम कर चुका हूँ, मेरे घर से नहीं आता था. नहीं तो मतलब राइट, यू आर राइट कि वैसा भी होता है, लेकिन मेनली द थिंग इज टू टेक इट फ्रॉम योर ओन हाउस टू योर वर्क प्लेस. ओके. तो यार बट मेरे को एक बात बता. अब एक कोई आंटी की किचन में बन रहा है खाना. हाँ. और वो बैठी है लोअर परेल में बना रही है. राइट. और ये खाना जाना है बीकेसी में किसी के ऑफिस में. हाँ. उसकी लॉजिस्टिक्स कब कैसे वर्क करेगी? अब जैसे वीफास्ट कुछ सामान डिलीवर करता है तो वी आर टाइंग अप विद वीफास्ट, तो वो डिलीवर कर वीफास्ट देंगे. कितने रुपए लेता है डिलीवरी के? So approximately we have calculated के around 80 rupees लेगा, लेकिन because we are tying up with them and giving them business in bulk, they will take approximately 60 to 65 rupees from us. 60 रुपए की तो डिलीवरी लगेगी. Right. लेकिन हम कितने का उसमें होएगा? 25 rupees चिप इन करेंगे. एक चिपिन तो करेगा, बट कहाँ से चिपिन करेगा? मतलब पापा के पैसे थोड़ा उड़ाने हैं. नहीं, we are इन्वेस्टर के उड़ाएंगे ना, इन्वेस्टर के उड़ाएंगे जैसे आपने उड़ाया. getting funds, right? We are raising funds. नहीं, पर So भाई वो from that, बिजनेस ऐसे नहीं चलता कि तुम सबको लगता है इन्वेस्टर के पैसे लो उड़ा दो बिजनेस बन जाएगा. ठीक है, हम सब लोगों ने वो हरकतें कर ली हैं, बिजनेस वैसे बनता नहीं है. एडमिट किया, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही हिमसेल्फ सेड इट. इन्होंने हरकतें करी हैं, बिजनेस नहीं बना. नाइस. एंड ऑफ द डे यार, जोमेटो की भी जो डिलीवरी कॉस्ट है वो मिलियंस ऑफ डिलीवरीज, right. और अच्छी डेंसिटी लाने के बाद भी वो 30-40 रुपए से कम नहीं कर पा रहे हैं. नहीं, लेकिन एक जो चीज़ मैं बोलूँगा एंड ये पहले हो चुका है ना, पहले ट्राई होके फेल हो नहीं, चुका है. right. आपने एक सुना होगा फास्ट सोर्स करके. ओके. पहले जब वो शुरू, लेट द किड्स स्पीक अश्नीर, लेट द किड्स स्पीक. उसके थॉट्स बाहर आने दो ना, वो क्या सोच रहा है यार, तुम बोल लेना यार बाहर. हुआ था, हाँ. वो यही करता था. फिर उनको समझ आ गया कि पैसे बन नहीं रहे, तो फिर उन्होंने अपने किचन शुरू करे. अच्छा. आई थिंक पूरी दुनिया में जहाँ पे ये किसी भी इकोनॉमिक से डिलीवर हुआ है वो बॉम्बे के डब्बे वालों ने किया है. ठीक है, बट ऐप बेस्ड वाला कोई भी बंदा इसको अभी तक कर नहीं पाया. बहुत लोगों ने ट्राई कर लिया. We'll do it.
मतलब दीपेंद्र गोयल ने कुछ गलत काम करता है तेरे हिसाब से? वो सही काम कर रहे हैं, लेकिन मतलब वी विल आई हैव द कॉन्फिडेंस दैट आई विल बी एबल टू डू इट। नो आई विल गिव यू फुल पॉइंट फॉर कॉन्फिडेंस, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं भी ग्रोफर्स में ये बिजनेस कर चुका हूँ। ओके। एंड एक दुकान से उठा के सामान देने में ना, मल्टीपल दुकानों से उठा के सामान देने में ही इकोनॉमिक्स नहीं बैठती थी। हाँ हमने फिर बाद में वेयर हाउस खोले, ठीक है। फिर जब इन्वेस्टर के पैसे आ गए तो हमने बोला हम 10 मिनट में सामान पहुंचा देंगे, ठीक है। तो उसमें पैसे नहीं बनने वाले कभी, मतलब इतने पैसे खर्च होते हैं ना कि कोई नहीं, लेकिन अंत ही नहीं है। इधर तो ऑर्डर वैल्यू है वो भी कम है क्योंकि इट्स मेड एट होम, इसलिए इवन इफ यू ऐड सम एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज टू इट, इट्स नॉट गोना हर्ट द बायर एज मच एंड द लॉजिस्टिक्स विल मैनेज। नहीं ठीक है, मैं तेरे साथ इसमें अलग से तेरे को समझाऊंगा, बट थैंक यू। थैंक यू। Okay. So yeah, like good pitch. लौंडा खड़ा रहा वहाँ पे despite facing some harsh questions. Nice. Good confidence as well. Talking about his project, तो nice यार. What he can do, you know, like अगर मैं सोचूं तो you know make it sort of hyper local बना दो इसको. ये मत करो कि तुम 10 किलोमीटर दूर जाके भी तुम्हें डिलीवरी करनी पड़ रही है। मतलब इसमें तुम क्या करो, शेफ्स ढूंढो फॉर एवरी 1 और 1.5 किलोमीटर रेडियस। तो उससे क्या रहेगा ना, जैसे मेरे आसपास कोई शेफ़ रहेगा इस प्लेटफॉर्म पे एंड आई ऑर्डर फूड फ्रॉम देम, तो गरम गरम भी पहुंचेगा, जल्दी भी पहुंचेगा और डिलीवरी भी थोड़ी कम पड़ेगी, है ना। तो मतलब यू कैन मेक सब, मतलब एक सिटी लो, उसमें सर्कल्स बनाओ और उसमें तुम शेफ्स रखो एंड सिंस घर का खाना है बहुत सारे ऑप्शंस तो नहीं रहेंगे, मतलब डेलिकेसीज लिमिट कर सकते हो, मतलब जो भी इनका प्रोसेस है, मतलब दे कैन, मतलब दिस गाय कैन मेक इट वर्क अगर इस पे काम करेगा। बट या लाइक दैट्स माय ओपिनियन ऑन द प्रोजेक्ट। बाकी लेट्स सी क्या बचा है इसमें। आई गेस ओह नेक्स्ट एपिसोड इंडियन स्टूडेंट गोइंग अब्रॉड, ये $multi-billion मार्केट है। This is the Gazipur landfill. ये जेन्युइनली बिजनेस है या अंडरग्रेड के लिए तैयारी हो रही है? What if I tell you the cost of running your car can be absolutely zero? Okay. Maybe next episodes will be like really good. And यार मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ ना, बड़ा अच्छा लगा यार ये शो जो भी है मास्टर्स यूनियन का। चलो भले यश नहीं रहा इसमें, बट या लाइक लाइक मुझे तो नॉस्टैल्जिया हो जाता है यार, थोड़ा काफ़ी रिलेटेबल भी लगता है एंड इट्स नाइस है टू सी एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रही है अपने देश में और काफ़ी, तो खैर काफ़ी अच्छे लेवल पे हम पहुंच गए। जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी लाइक हम एकदम ऐसे ऊपर ही जा रहे थे इस पर। हाँ बट यस हमें मतलब जब मैं स्कूल में था ना यार, जो मैं अपना स्टार्टअप कर रहा था तो मैं भी चाहता था यार कि अपने स्कूल में भी यार ऐसा कुछ हो, एक पैनल है मॉक इन्वेस्टर्स का, या टीचर ही बैठ जाओ, मैं उनके सामने पेश करूँ ये सब वो सब, सो दैट जो मेरे क्लासमेट्स हैं, दोस्त हैं और जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं उनको थोड़ा आइडिया हो कि व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। ऑल दो बिजनेस चलाना, एंटरप्रेन्योरशिप करना इज़ रियली डिफ़िकल्ट। एंटरप्रेन्योर बनना यार इट्स लाइक रियली डिफ़िकल्ट रोड, बहुत ही पेशेंस चाहिए, बहुत हसल करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल है एंड फुल ऑन जर्नी है जो आपको काफ़ी कुछ सिखाती है। बट जो जिस चीज़ को भी आप सक्सेस कंसीडर करते हो ना इसमें, वो मतलब इट्स नॉट सर्टेन, इट्स हाई, इसकी अनसर्टेनिटी बहुत है। तो मतलब लाइक एंटरप्रेन्योरशिप पे पूरी स्टार्टअप ये सब सुनने मतलब बहुत ही ग्लैमर लगता है लाइक बाहर से देखने में, बट जब आप करना शुरू करते हो तो इट्स टफ एंड ऑफ कोर्स यार लाइक ऐसे थोड़ा है तो कोई भी स्टार्टअप है वो चल पड़ेगा, वरना तो पूरी दुनिया में लोग स्टार्टअप्स ही करते हैं, काफ़ी कम सर्वाइव करते हैं, काफ़ी कम स्केलेबल हो पाते हैं, काफ़ी कम स्टार्टअप्स प्रॉफिटेबल हो पाते हैं। सो या इट्स डिफ़िकल्ट बट स्टिल यार लाइक दिस कंट्री नीड्स अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जो आ भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई कुछ कर नहीं रहा, बहुत आ रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। और तो शार्क टैंक के बाद भी काफ़ी अवेयरनेस आई है, ऑल्दो वो तो सोनी टीवी पे आता है और थोड़ा बहुत हो जाती है।
So this country needs a lot of entrepreneurs so that अच्छा काफ़ी jobs आ पाएंगे. Like India has a lot of potential, right? इतनी बड़ी population, cheap internet है ना, like और smartphone penetration इतना है, तो और इतने सारे problems हैं. ऐसा नहीं है कि अपना country बहुत smooth चल रहा है. So rather than like people complaining about it, we should identify those pain points, those problems, and based on that, अगर वो viable निकले, it can be worked upon. So yeah, I guess छोटा सा मेरा ये insight about this. Although I'm not sure, by the way, मेरे को ये भी हो सकता है कि सर copyright strike आ जाए और मेरा ये पूरा वीडियो उठ जाए. बट एनीवे इट डजंट मैटर फॉर मी बिकॉज मेरे को थोड़ा ना पैसे बनाने यूट्यूब वीडियो से. आई जस्ट वांट टू मैं चाहता हूँ इंटरनेट पे मेरा ओपिनियन रहे. सो या आई गेस आई विल सी यू इन एपिसोड 2. बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.